Video I'm going to talk about the 5 things that you must do while if you are in college. I've done a lot of these things and to be honest मेरी काफ़ी अच्छी college life है and I'm pretty satisfied and I could not expect anything more to happen. First one is networking. Now why is networking important? First of all, वही networking करने से तुम्हें पहले तो तुम्हें एक तुम्हारी communication skills अच्छी होती है, तुम्हें ये समझ में आता है कि random लोगों से बात कैसे start की जा सकती है. That is a skill actually, like that is a really good skill to have, like talking to random people, cold mailing them, portraying yourself as an interesting personality and extracting knowledge and learning from their experience that will help you smoothen your path. That is something which is really important. मतलब अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि लोग क्या क्या गलती करते हैं, वो सेम चीज़ जो तुम करने जा रहे हो, तो तुम्हारा रास्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तुम्हें पता होगा कि हाँ यहाँ पे ये गलती हो सकती है तो मुझे वो नहीं करनी है. You'll constantly keep that in mind. This is one thing. Networking also, so you learn things pretty fast. For example, if I want to start something, what I do is I go to LinkedIn, I'll see मेरे BITS के alumni कौन से जो भी recently graduate करे हैं, and then I'll ask them 3 questions. First of all, how did they start doing that? What are the common mistakes that they did? And what are the tips that I should follow? So these are the 3 questions that I asked. So if he's replying to me and if he's helping me, he essentially becomes a mentor and he would guide me throughout. कोई भी चीज़, अकेड्स भी हो गया, तो मेरे दोस्त जो बहुत ज़्यादा फोड़ते हैं अकेड्स में, उनसे मैं जाके पूछता हूँ कि हाँ भाई कैसे करना है शुरू, इस कोर्स में क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है. सीनियर्स हो गए, उनसे पूछता हूँ कि हाँ ये कोर्स कैसे शुरू करूँ, मैं अभी पढ़ना स्टार्ट करूँगा मैं, तो कैसे करूँ क्या करूँ करके. दैट एसेंशियली हेल्प्स एंड दैट मेक्स द रोड path easy. So networking is pretty useful and leveraging your network in a practical way in college. Second thing is I feel pretty important and it's no one talks about is actually making streams for passive income. Now अब ऐसा मत समझो कि कॉलेज में रह के तुम करोड़पति बन जाओगे या लखपति बन जाओगे. ठीक है, हो सकता है बन जाओ, आई एम नॉट सेइंग गलत है कुछ, हो सकता है बन जाओ, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू बनाओ. अब वो कैसे कर सकते हो? तुम स्किल सीख के कर सकते हो, वैल्यू ऐड करके कर सकते हो, या फिर कंटेंट क्रिएट करके कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्ट करके कर सकते हो. ये सब चीज़ें हैं जिससे तुम एटलीस्ट गेट टू नो अबाउट स्टफ विच कैन मेक यू मनी लेटर ऑन. सो इफ़ यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, इफ़ यू आर building an audience, or if you are like learning a skill so that can be later monetized, you are essentially making those small streams of revenue which would kind of compound over time and give you great returns. तो अभी कोई तुमसे expect नहीं करता ना कि तुम पैसे कमाओ इतने x amount of money, but if you start investing your time in these fields which would compound over time to give you great returns, then जब तुम्हारा असली वाला टाइम अगर तुम्हें पैसे कमाने होंगे, तब तक ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैनल्स ऑफ पैसिव इनकम बन जाएंगे. एंड तब तुम अपनी एनर्जी rather than focusing on making money, you can focus on how to increase that money or doing stuff that you like. That essentially is financial freedom. So the goal should not to make X amount of money. The goal should be to first of all be wealthy and second of all attain financial freedom early on. अब early on की क्या ज़रूरत है? Because जब तुम 50 साल के होते हो, जनरली 40 से 50 साल तक इंडिया में लोग मिलियनेयर हो जाते हैं, बट तब तक तुम्हारे पास एक फैमिली होती है जिसका तुम्हें ख्याल रखना होता है. तुम्हारे पास उतनी एनर्जी होती नहीं है जितनी अभी है. तो अगर तुम अपनी ज़िंदगी को असली अच्छे से जीना चाहते हो ना, तो तुम जितना जल्दी वो अर्ली रिटायरमेंट वाले फेज में आओगे कि व्हेन यू कैन क्विट योर जॉब एंड यू कैन स्टिल सर्वाइव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद द स्ट्रीम्स दैट यू हैव, देन you'll be able to explore life and enjoy life to a much better extent with enough resources in hand. The third thing is taking risk. Now what does risk mean? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो स्टार्टअप कर लो, तुम स्टार्टअप कर लो अपना कॉलेज में, बट उसकी बात तो मैं कर नहीं रहा. अगर वो किसी को करना है तो कर सकते हो. मतलब उसके भी एडवांटेज हैं एक दो कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस. तुम्हारे पास एक स्टूडेंट टैग होता है, नो वन एक्सपेक्ट्स यू टू नो एवरीथिंग. यू कैन आस्क सिली क्वेश्चंस एंड यू वुडंट बी जज्ड. एंड एक और चीज़ होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स में फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ खोने के लिए नहीं है. मतलब तुम्हारे पास बड़ा पाव का उधार रहता है तुम्हारे ऊपर, तुम क्या ही खोदोगे सारा. But by taking risks, I also mean कि coming out of a comfort zone. That is very important if you are in college, because college में क्या होता है ना, लोग इतने सारे लोग होते हैं, इतने क्लोज नेट हो जाते हैं सब, एक पूरा बैच, की ऐसा लगता है कि तुम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड लगता है कि हाँ अगर मैं ये एक्शन करूँगा तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बोलूँगा तो क्या सोचेंगे. तुम इन्हीं चक्करों में आधी तुम्हारी कॉलेज लाइफ बस फिट इन करने में निकल जाती है कि अगर कोई लोग एक्स चीज़ें कर रहे हैं तो तुम भी वो चीज़ करोगे जस्ट टू फिट इन. Instead of that, you should focus on standing out. You should focus on being different and not doing stuff that everyone else is doing in college. Like, okay, थोड़ा सा like sound कर रहा है कि ऐसा fancy है, but like to be honest यही तुम्हारा goal होना चाहिए. Like अगर सब कोई X चीज़ कर रहे हैं
तो तुम भी वही चीज़ कर रहे हो, तो तुम क्राउड की तरह बन रहे हो, तो एंड द चांस दैट यू विल एक्चुअली गेट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दैट इज़ वेरी वेरी लेस. ओके, आई एम नॉट टेलिंग कि भाई मतलब बिल्कुल ही अलग करो, उस पर भी मैं आऊँगा नेक्स्ट पॉइंट पे. मैं ये नहीं बोला कुछ बिल्कुल ही अलग करो, बट एटलीस्ट बैलेंस रखो. अगर तुम 2-3 चीज़ें कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर प्लेइंग द सेफ रोड एज वेल एज यू आर टेकिंग रिस्क. एंड इसको फाइनेंस में कहते हैं एक्चुअली डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो, कि तुम कुछ ऐसे स्टॉक्स कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो थोड़ा सेफ बेट्स है, एंड तुम कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो काफ़ी रिस्की बेट्स है. द फोर्थ थिंग इज CGPA. अब इसमें ना बिल्कुल दो चीज़ें होती हैं, या तो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्ड रखते हैं, या तो फिर लोग बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं. ठीक है, सो अनलेस यू आर एमिंग फॉर मास्टर्स और इफ़ यू आर एमिंग फॉर हायर स्टडीज़ देन यू शुड हैव अ ग्रेट CGPA. तब CGPA पे फोकस करो. बट अगर तुम श्योर नहीं हो देन आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन टू गेट 9+ CG और 9.5+ CG, तुम उस सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट से और 10 चीज़ें करो, 10 चीज़ें एक्सप्लोर करो. बिकॉज ओके, जो अच्छी CG ला रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें मास्टर्स या कुछ करना है फ्यूचर में आगे जाके, तो उन्हें ऑलरेडी पता है क्या करना है. बट जो लोग हैं जिनको पता नहीं है ना उन्हें अपनी लाइफ से क्या करना है, तो उस उतने टाइम और एफर्ट्स उसमें लगाने के बदले तुम कॉलेज में आने के बाद जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होंगी ना, जो भी नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जो भी नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनमें अपनी एनर्जी लगाओ और अपने आप को ग्रो करो और अपने आप को जानो कि तुम किस तरीके के इंसान हो और तुम्हें क्या करना पसंद है. और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया CGPA को, बिकॉज मैंने अब जाके रियलाइज़ किया है कि CGPA का एक रोल होता है. ठीक है, CGPA मेंटेनिंग का CGPA, सीनियर से बात करो तो एक पता होगा कि हाँ इसके ऊपर रखना है मुझे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. ठीक है, जो तुम्हें कॉलेज प्रोवाइड करता है वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं होंगी. ठीक है, अब जैसे अगर तुम 8+ CGPA रख रहे हो, ऑब्वियसली स्टार्टअप यू कैन ऑब्वियसली डू ऑल दोज थिंग्स, बट यू विल ऑब्वियसली हैव अ सेफ बेट जहाँ पे तुम कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो जो प्लेसमेंट पे आएगी. सो दैट इज एसेंशियली लाइक डाइवर्सिफाइंग योर सेल्फ. आई मीन या सो लाइक दैट्स व्हाट. ऐसा बिल्कुल लाइट भी नहीं लेना, और बिल्कुल अगर तुम्हारे पास कोई सर्टेन रीज़न नहीं है तो बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी CGPA के लिए. एक मेंटेन करके रखो, एक सेफ स्पॉट में रहोगे और मस्त जाएगी कॉलेज लाइफ टेंशन फ्री. एंड CGPA ओके, ऑल्सो CGPA फॉर मी एक्ट्स एज अ शील्ड. ओके, इट्स लाइक अ शील्ड. तो अगर मैं कोई भी दुनिया जहान के काम कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं हाँ ये क्या कर रहे हो, तो मैं उन्हें बोल सकता हूँ हाँ एक CGPA मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो वैसी बातें हो जाती हैं एंड दे काइंड ऑफ अग्री. तो फिफ्थ थिंग इज हैव फन इन कॉलेज ब्रो. बाय फन आई मीन वो सब नहीं, लाइक कोई बेकार के एडिक्शन मत पा लेना जिसको हटाने के लिए तुम्हें और 10 साल लग जाए, वैसा कुछ नहीं. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ हैविंग फन, बट मेक श्योर दैट डेफिनेशन ऑफ हैविंग फन इज़ नॉट एडिक्टिव इन एनी सेंस. एंड बाकी तो मज़े करो, घूमो फिरो कॉलेज में यार. मज़े करने के लिए भी ये 4 साल है. ठीक है, उसके बाद होंगे मज़े होंगे, बट लाइक फिर ये सेम दोस्त ही रहेंगे, सब दोस्त अलग अलग जगह चले जाएंगे. मस्ती वाले दोस्तों के साथ रह पा रहे हो और कहीं इतनी फ्रीडम है, पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मस्ती के लिए भी हो सकता है आगे ना मिले. अगर तुम्हें आगे जाके मस्ती करनी होगी तो तुम अपने पैसे से कर रहे होगे, अभी तुम अपने मम्मी पापा के पैसे से कर रहे हो. तो वही बात है यार. मतलब आई होप यू लर्न समथिंग. या अगर तुम किसी बात से अग्री नहीं करते हो तो यार बिंदास बोलो भाई, मैं खुद तुमसे सीखूंगा इतना, एंड मैं हो सकता है अपने ओपिनियंस को क्वेश्चन करूँ उसके बाद. एंड यप, आई होप यू लाइक इट. सी यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.